क्वेश्चन नंबर 32, मेरे को जरा बोलो, तुम्हारा ग्राफिकल मेथड विल ओनली हेल्प इफ देयर आर कितना वेरिएबल्स, लेकिन ये क्वेश्चन के लिए 3 वेरिएबल आएगा. ओके पढ़ो. A local travel agent is planning a charter trip to a major sea resort. The 8-day 7-night package includes fare for round trip travel, surface transportation, boarding and lodging, and selected tour options. Charter trip is restricted to 200 people. And the past experience indicates that there will not be any problem of getting 200 people. ठीक है, वो लोग क्या बोलते हैं कि चार्टर के अंदर 200 लोग का कैपेसिटी है और उन्होंने खुद प्रिंट करके दिया है कि 200 लोग तो बॉस मिल जाएगा अपने को. ठीक है, आगे. These plans differ according to seating. Sorry, the problem for the travel agent is to determine. We are here to solve your problem only. तो बोलो क्या है? The problem for the travel agent is to determine the number of deluxe, standard and economy packages to offer to this charter. The moment you read this line ना तुम्हारे दिमाग के अंदर फिक्स हो जाना चाहिए, sir let x1, x2 and x3 be, आगे बोलो, number of tour packages to be offering for the 3 types. ठीक है, आगे. These 3 plans differ according to seating and service for the flight, quality of accommodation, meal plans and tour options. The following table summarizes the estimated prices for the 3 packages and the corresponding expenses for the travel agent. The travel agent has hired an aircraft at a flat fees of 2 lakh rupees for the entire trip. Price and cost for the tour packages for the entire trip is rupees 2 lakhs. ठीक है, तो एक आपका फिक्स्ड कॉस्ट है कितने रुपीस का, 2 lakhs. Price and cost for the tour packages per person. Price, hotel cost, meal and other expenses, deluxe. तो deluxe package अगर कस्टमर लेगा तो उससे कितना वसूल करेंगे, 10,000. अपना होटल कॉस्ट कितने का आ जाएगा, 3,000. मील एंड अदर एक्सपेंसेस जो हमारा है कितना आ जाएगा, 4,750. आगे स्टैंडर्ड का दिया हुआ है, आगे इकोनॉमी का दिया हुआ है. इन प्लानिंग द ट्रिप फॉलोइंग कंसिडरेशंस मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट. इस क्वेश्चन के ना कंस्ट्रेंट्स का बाढ़ आ जाएगा, वो बराबर से पढ़ना. फर्स्ट, एटलीस्ट 10% ऑफ द पैकेजेस मस्ट बी ऑफ डीलक्स टाइप. Second, at least 35% but not more than 70% must be of standard type. Third, at least 30% must be of economy type. Fourth, the maximum number of deluxe packages available in any aircraft is restricted to 60. ठीक है. Fifth, the hotel desires that at least 120 of the tourists should be of deluxe and standard packages together. ठीक है. The travel agent wishes to determine number of packages to offer in each type so as to maximize the profit. ठीक है, तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बेटा क्या है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. फॉर्मुलेट द अबव एज एन एलपीपी. Restate the above LPP in form of 2 decision variables taking advantage of the fact that 200 packages will be sold. C. Find the optimum solution using graphical method for the restated LPP and interpret your results. चलिए ठीक है, स्टार्ट हो जाते हैं. तो लेट्स डिफाइन आवर 3 वेरिएबल्स. आई गेस वो सबसे इजी काम है क्वेश्चन के अंदर. लिखिए जरा प्लीज. लेट x1, x2 and x3 be the number of deluxe, standard and economy packages to be sold. चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. नेक्स्ट लाइन पे लिखिए रोमन नंबर 1, ऑब्जेक्टिव फंक्शन. मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, वो सम के अंदर दिया हुआ था. तो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू,
अच्छा, मेरे को सब लोग जरा कैलसी के ऊपर या ओरली कंप्यूट करके बताओ बेटा, एक डीलक्स पैकेज बेचेगा कितना कमाएगा? कितना कमाएगा? 2250 नो 10,000 का अपना वो सेलिंग प्राइस है, अपने दो वेरिएबल कॉस्ट है, 3000 का, एक 4750 का, तो कितना कमा लोगे? 2250। ऐसे कितने पैकेजेस बेचोगे? X1 प्लस सेकेंड वाले का कितना आ जाएगा? 2300 X2। थर्ड वाले का क्या आ जाएगा? 2400 X3। अच्छा, एक छोटा सा चीज, वट एवर आई हैव रिटन नो वैसे विल हेल्प यू रीच टिल कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि सम के अंदर एक और फिक्स कॉस्ट भी है। देखो जरा फिक्स कॉस्ट कितना है? 3 लाख। लेकिन तुमको समझ में आएगा बेटा 2 लाख को क्या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करूं, वो तो 2 लाख ही है ना यार। तो अगर चाहो इधर 2 लाख भी लिख सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब व्हाट आई ट्राई टू थिंक, इसको ऐसे ही रहने दो, तो वी विल स्टार्ट टू गेट हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन एंड वंस वी गेट हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन, आगे बोलो, we will subtract fixed cost, will get the highest profit at that stage। ठीक है, so let it remain like this only, minus 2 lakhs वगैरह क्यों लिखने का। तो यहां पे रोमन नंबर 2 constraints first। अच्छा, मेरे को जरा बोलो अपने चार्टर का वो जो बोट वगैरह है, वो जो भी है, उसका कैपेसिटी बॉस कितना है? और सम के अंदर 2 बार लिख के दिया कि अपने को कोई दिक्कत नहीं होएगा इन गेटिंग 200 पीपल। देख लो जरा, एक बार यहां पे 5th लाइन पे लिखा, 4th लाइन पे लिखा, चार्टर ट्रिप इज रिस्ट्रिक्टेड टू 200 पीपल, पास एक्सपीरियंस इंडिकेट्स देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन गेटिंग 200 पीपल। और नीचे पार्ट नंबर बी के अंदर भी लिख के दिया, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट 200 पैकेजेस विल बी सोल्ड। तो हम मेरे को बोलो यहां पे कंस्ट्रेंट क्या लिखूं बॉस? बोलो X1 plus X2 plus X3 is equal to 200। अच्छा, आगे, at least 10% of the packages must be of deluxe type। एक मिनट, deluxe बोले तो X1 नो, 10% of the packages, मेरे को बोलो 10% of the packages, total packages I'll be getting sold are 200 no, so therefore 10% मतलब 20। तो नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ डीलक्स मतलब X1 शुड बी एटलीस्ट 20। आगे, एटलीस्ट 35% बट नॉट मोर देन 70% मस्ट बी ऑफ स्टैंडर्ड टाइप। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग कंस्ट्रेंट्स हैं बॉस। स्टैंडर्ड बोले तो X2 मिनिमम कितना होना चाहिए? 35%। 35% मतलब 70 नो, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 70%, मतलब X2 इज लेस देन इक्वल टू 140। दो अलग अलग चीजें हैं वो। ठीक है, आगे, एटलीस्ट 30% मस्ट बी ऑफ इकोनॉमी टाइप। इकोनॉमी टाइप मतलब X3, इकोनॉमी टाइप 30%, एटलीस्ट वो लिखा हुआ है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 60। The maximum number of deluxe packages available in any aircraft is restricted to 60। It's not 60%, हाँ? तो deluxe मतलब X1 should be less than equal to 60। Seventh, the hotel desires that at least 120 of the tourists should be of, क्या लिखा है बेटा? डीलक्स एंड स्टैंडर्ड पैकेजेस टुगेदर। तो बोलो जरा, X1 प्लस X2, आगे बोलो, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 120। नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट X1 X2 X3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मेरे को बोलो ये तुम्हारे ग्राफ पे सॉल्व होएगा? क्यों? तुम्हारा पोपट हो जाएगा। बोलो क्यों? देयर आर 3 वेरिएबल्स, तो वो लोगों ने इसलिए तुम लोग को पार्ट बी पूछा। रीस्टेट द अबव एलपीपी इन फॉर्म ऑफ 2 वेरिएबल्स टेकिंग एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट 200 पैकेजेस विल बी सोल्ड। तो चलो ठीक है, सुनो, तो यहां पे अभी लिखो पार्ट बी सॉल्व कर रहे हैं।
अभी इतना तुम लोगों को समझ में आएगा। बेटा यहाँ पे ना एक कंस्ट्रेंट है फर्स्ट वाला, दैट विल हेल्प यू द मैक्सिमम आई गेस। वो लोग क्या बोलते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 200। समझ में आएगा, इन तीनों में से मैं एक को निकाल सकता है ना। अभी तुम्हारे हिसाब से तुम लोग मेरे को जरा बोलो, बाय लुकिंग एट द अदर्स ऑल्सो, तुम लोग को x1 x2 और x3 कहने से क्या निकालने का बहुत मन कर रहा है? हाँ, मेरे ख्याल से x3 द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि बाकी कंस्ट्रेंट्स के अंदर ना x3 सबसे कम आ रहा है, क्योंकि ये मेरे को सब कुछ फिर से रीड्राफ्ट वो करना पड़ेगा बेस्ड अपॉन ओनली 2 वेरिएबल्स। तो उसको निकालो ताकि तुम्हारा बाकी चीजें कम इफेक्ट हो। ओके, किसी को भी वो निकालो, एंड के अंदर आंसर तो वही रहने वाला है, बट गिवन अ चॉइस x3 को निकालोगे ना, दैट बी द बेस्ट थिंग। ठीक है, तो आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट to remove one of them. Can we say x1 plus x2 plus x3 is equal to 200? मतलब x3 is equal to, बोलो आगे, 200 minus x1 minus x2, no? Okay, तो यहां पे लिख के रखो, we know that x1 plus x2 plus x3 is equal to 200. Therefore, x3 is equal to 200 minus x1 minus x2. अच्छा, पूरा क्वेश्चन फिर से अभी वो बनेगा, जिधर भी x3 है उसके बदले में क्या आ जाएगा बॉस? 200 माइनस x1 माइनस x2। नेक्स्ट लाइन पे लिखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, पहला वाला वैसे ही रहेगा 2250 x1, नेक्स्ट वाला वैसे ही रहेगा 2300 x2, लास्ट वाला चेंज करना पड़ेगा 2400 इनटू, क्या आ जाएगा यार? 200 माइनस x1 माइनस x2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तुम्हारे लिए वो अच्छा है। सुनो मेरी बात, आई एम मल्टीप्लाइंग एब्सोल्यूट फिगर्स, 2400 इंटू 200 विल बिकम कितना? 480। पहले वो वाला टर्म लिख लो, इतना मैथ सब लोगों को डायरेक्टली समझ में आ जाएगा बॉस। 2400 इंटू माइनस x1, सो देयरफॉर विल बिकम माइनस 2400 x1, और ये 2250 x1 इधर पड़ा हुआ है। ओके, तो यहां पर अभी क्या आ जाएगा? माइनस 150 x1, आगे बोलो माइनस 100 x2। कंस्ट्रेंट्स, अच्छा अब मेरे को जरा बोलना, यहां पे 8 कंस्ट्रेंट्स थे, सोचो जरा जो मैं बोल रहा हूं, डज इट मेक सेंस और नॉट? आपको x3 के बदले में हर जगह पे क्या लिखना है? 200 माइनस x1 माइनस x2। तुम्हारा फर्स्ट कंस्ट्रेंट विल नॉट बी रिक्वायर्ड, सोच लो एक बार, बिकॉज इफ यू आर राइटिंग x3 इज इक्वल टू 200 माइनस x1 माइनस x2, इफ दिस इज ट्रू ऑटोमेटिकली दिस इज ट्रू। नो यार, फिर को बोलते नहीं सर मेरे को तो लिखने का ही है, तो कुछ नहीं होएगा। फिर x1 प्लस x2 अगर यहां पे लिखेगा 200 माइनस x1 माइनस x2, तो एंड में समझ में आएगा, इक्वेशन बनेगा 200 इज इक्वल टू 200। अरे समझ में आता है तुमको? x1 एंड माइनस x1 विल गेट कैंसल, नो, सेम थिंग विल हैपन फॉर x2 आल्सो। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट बॉस इज नॉट रिक्वायर्ड, यहां पे लिख के रख सकते हो नॉट रिक्वायर्ड। बाकी तुम लोग मेरे ख्याल से कॉपी करना स्टार्ट कर दो। x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 20, थर्ड वाला भी वैसे ही रहेगा, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, फोर्थ वाला भी वैसे ही रहेगा, x2 इज लेस देन इक्वल टू 140, फिफ्थ वाला बदलेगा। अच्छा, फिफ्थ वाला x3 के बदले में क्या आ जाएगा? 200, I'll write it on the next line only. So 200 minus x1 minus x2
is greater than equal to 60. मेरे को एक ही बार सब कुछ ठीक करके एक ही इक्वेशन बोलो, क्या लिखूं यार? x1 आगे बोलो प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 140. सिक्स्थ वैसे ही रहेगा, x1 इज लेस देन इक्वल टू 60. सेवेंथ वैसे ही रहेगा, x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 120. एट्थ के अंदर एक चेंज, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अभी x3 तो निकल ही गया ना. एक मिनट वेट करो, मेरे ख्याल से एक बार यहां पे जरा देखो. सेकंड वाले के लिए तुमको कोई पॉइंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो सिंगल कोऑर्डिनेट है ना. ठीक है, इसके लिए भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए भी जरूरत नहीं पड़ेगी. मैक्सिमम तुम लोग को दो के लिए वो जरूरत पड़ेगा, एक फिफ्थ वाले के लिए और एक सेवेंथ वाले के लिए. एक मिनट, तुम लोगों ने बोथ क्वेश्चंस किए तो मैं डायरेक्टली तुम लोगों को वो बोल ही देता हूं. x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 140. एक पॉइंट हो जाएगा 140 0, एक पॉइंट हो जाएगा 0 140. समझ में आता है? सेम वे x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 120. एक पॉइंट हो जाएगा 0 120, एक पॉइंट हो जाएगा 120 0. तो वो नहीं भी लिखेंगे, वो चल जाता है. दैट्स ऑल. ओके ओके, लेट्स स्टार्ट टू मेक द ग्राफ. आई गेस तुम्हारा x1 और x2 का मैक्सिमम वैल्यू ना मेरे ख्याल से 140 तक जाएगा. ओके, तो 10 का स्केल ले लो. यू ऑल राइट डाउन अ कॉमन स्केल ओनली. लिखो स्केल x, y एक्सिस 1 unit is equal to 10 units. चलो, आई एम स्टार्टिंग टू मेक द लाइन्स. तो सबसे पहले जब भी एक लाइन बनाते हो ना, प्लीज उसका जो एरिया है तभी एरो से मार्क कर देना, वरना एंड के अंदर बहुत सारी वो चीजें हैं तो एंड के अंदर वो कंफ्यूज हो जाओगे. तो x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20. तो दिस इज x1 इज इक्वल टू 20. एरिया इज दिस साइड. x2 greater than equal to 70. x2 is equal to 70. Area will be this side.
उसके बाद x2 is lesser than 140, less than equal to, तो x2 is equal to 140, area is below it. तो सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ में करता हूं. लेट मी जस्ट डू दिस द इजी वंस फर्स्ट. x1 is less than equal to 60. सुनो, अभी तक मैंने 4 लाइन बनाए, बस मेरे को बोल दो कि अभी सपोज अभी सिर्फ 4 ही लाइन होता तो अभी तक तुम्हारा फीजिबिलिटी रीजन तो कौन सा आ रहा है, जो कॉमन वाला एरिया है? ये रेक्टेंगल जो है तो ये आ रहा है ना. ओके, तो ये वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है. लेकिन अभी तक 2 बाकी है. x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 140. उसका 2 पॉइंट हम लोगों ने बात कर लिया था. x1 plus x2 is equal to 140. अच्छा, इसका एरिया नीचे की तरफ है ना. मेरे को बोलो अभी तक तुम्हारा कौन सा एरिया आ रहा है? अगर इसको ट्राइंगल थोड़ी बोलता है यार. ये वाला एरिया आ रहा है, इसके नीचे वाला, ठीक है. अभी लास्ट वाला x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 120. तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये. तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 120. इसका ऊपर वाला एरिया. आई गेस एवरीथिंग इज फिनिश्ड ओनली ना. तो 6 लाइन था, तो आई गेस 6 लाइन तो आगे इधर. मेरे को बोलो फाइनली अभी तुम्हारा जो कॉमन एरिया है वो कौन सा है बॉस? ये वो मिसाइल वाला एरिया, ये बीच वाला. हाँ, अच्छा, मेन पॉइंट्स को ऐसे डिफाइन कर रहा हूं. ए इधर, बी इधर, सी इधर, डी इधर, ई इधर. अच्छा, तुम लोगों ने ग्राफ बराबर से बनाए, इसलिए तुम लोग शायद मेरे को वो बता पाओगे. इन एनी केस अगर नहीं मिलता, यू कैन ऑलवेज सॉल्व द इक्वेशंस इन अ साइमल्टेनियस वे, तो वो हो जाएगा. लेकिन मेरे ख्याल से तुम लोग को शायद डायरेक्टली वो मिल जाएगा. मेरे को बोलो ए का कोऑर्डिनेट्स बेटा क्या आया? 50 एंड 70. बी का 60 70 फिर होगा. सी का कुछ और 70 होएगा. कितना है? सॉरी, वो 60 और कुछ होएगा, तो 60 और 80. डी का 20 और कुछ होएगा, 20 और 120. और ई का 20 100 है. लिखो ए बी सी डी ई is the feasibility region.
अच्छा अभी एक काम जरा करो, अपना ये वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन वापस वो लेके आओ, तो नेक्स्ट लाइन पे लिखो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4,80,000 minus 150x1 minus 100x2 and test it for your 5 points A, B, C, D, E please. तुम्हारा हाईएस्ट पॉइंट 4,67,000 आता है। अच्छा वो तुम्हारा पॉइंट ई पर आता है, ठीक है। अभी 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनो। तो हम लोग कंक्लूजन कुछ ऐसे देने वाले हैं, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इज 4,67,000, देयरफॉर मैक्सिमम प्रॉफिट इज 2,67,000। 2,67,000 समझा? 2 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट था ना, विच विल हैपन व्हेन 20 deluxe packages, 100 standard packages will be sold. Automatically remaining 80 packages किसका हो जाएगा? इकोनॉमी वाले का। ओके तो ये कंक्लूजन तुम लोग को वर्ड्स के ने वो लिखवा रहा हूं, राइट डाउन प्लीज। द मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन इज 4,67,000, which will happen when 20 deluxe packages, and 100 standard packages will be sold. Full stop. Remaining 80 packages will be of economy type. Full stop. Max profit is 4,67,000 minus 2 lakhs
is equal to 2,67,000. चलिए that's it for question number 32. चलिए last question for the graphical method, question number 33. ये इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन है. हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट वाले बहुत क्वेश्चंस किए हुए हैं. Let us assume that you have inherited 1 lakh rupees from your father-in-law. तो दो अच्छा न्यूज, फादर इन लॉ वो ऊपर गया, वो दूसरा अच्छा न्यूज, लाख रुपया वो छोड़ के गया. पढ़ो. That can be invested in combination of 2 stock portfolios with maximum investment allowed in either portfolio is set at 75,000. ठीक है. तो 1 लाख रुपया है तेरे पास, तो उसको दो जगह पे इन्वेस्ट कर सकता है, पोर्टफोलियो 1 and 2. हर एक ना मैक्सिमम 75,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हो. First portfolio has average rate of return of 10%, whereas second one has 20%. In terms of risk factors associated with these portfolios, first one has a risk rating of 4 on a scale of 0 to 10, and second has 9. Since you wish to maximize your return, you will not accept an average rate of return below 12% or a risk factor above 6. Hence, you face the important question. What is the important question? Padho. How much should you invest in each portfolio? We will invest X1 and X2. आगे. Formulate this as an LPP and solve by graphical method. ठीक है. बस मेरे को ये बोल दो, X1 and X2 will stand for what? Amount invested in portfolio 1, portfolio 2. लिखो जरा please. Let X1 and X2 be the amount invested in portfolio 1 and 2 respectively. नेक्स्ट लाइन पे लिखो मैक्सिमाइज Z इज इक्वल टू, अगर वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वगैरह वो लिखने का है तो रोमन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न्स. ठीक है. अभी बराबर से बोलना, मेरे को बोलो मैक्सिमाइज Z इज इक्वल टू, बोलो तुमको रिटर्न्स कैसे मिलेगा बॉस? 10% ऑफ x1 प्लस 20% ऑफ x2. नो, सो 0.1 x1 प्लस 0.2 x2. नेक्स्ट लाइन पे लिखो कंस्ट्रेंट्स. पहले लिखो अमाउंट कंस्ट्रेंट. अच्छा, मैं अमाउंट कंस्ट्रेंट के ना 3 कंस्ट्रेंट वो डाल रहा हूं. फादर इन लॉ सिर्फ कितना पैसा वो छोड़ के गया? 1 लाख. लिखो इधर x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 1 लाख. अच्छा, तुम लोग हर एक के अंदर कितना इन्वेस्ट कर सकता है? 75. क्या लिखूं बेटा? x1 इज लेस देन इक्वल टू 75, x2 is less than equal to 75. आगे उन्होंने क्या बोला है? मेरे ख्याल से 2 और कंस्ट्रेंट्स है. देखो, आपको मिनिमम रिटर्न कितने का चाहिए? 12%. और आपका एवरेज रिस्क फैक्टर कितने के ऊपर नहीं होना चाहिए? 6. तो आई टेक दैट रिटर्न वाला कंस्ट्रेंट फर्स्ट. लिखो रिटर्न कंस्ट्रेंट. अच्छा, तुम्हारा एवरेज रिटर्न शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 12%. एक मिनट, अगर कोई तुमको बोलता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालो, तो आप लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हो बॉस? रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, दैट गिव यू योर रिटर्न. नो, ठीक है. तो अब मेरे को इक्वेशंस के तौर पे बोलो बराबर से. मेरे को बोलो न्यूमरेटर में क्या आएगा बॉस? 0.1 x1 plus 0.2 x2. नो, दिस इज द रिटर्न दैट आई विल गेट. ये लिखो, ये न्यूमरेटर हो जाएगा.
आगे बोलो, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट 1 लाख लिखूं क्या? x1 प्लस x2। अच्छा, अगर इंटू 100 लिखने का मन है तो फिर राइट हैंड साइड पे सिर्फ 12 लिखना। अगर इंटू 100 लिखने का मन नहीं है तो राइट हैंड साइड पे 0.12 लिखना। हाइब्रिड कुछ नहीं करना प्लीज। ओके, सो इंटू 100 आई एम राइटिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 12। सिंप्लीफाई कर लो, तुम ही लोग को सॉल्व करने का है। सुनो, तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऑन लेफ्ट हैंड साइड, 10x1 प्लस 20x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 12x1 प्लस 12x2। माइनस 2x1 प्लस 8x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं पहले 4 से डिवाइड करता है, माइनस x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या हुआ? डिवाइड बाय 2 किया बेटा, मैंने क्या बोला था? हाँ, तो डिवाइड बाय 2, ठीक है। अच्छा, अभी नाउ चेंज द साइंस, x1 माइनस 4x2 इज लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, एक रिटर्न कंस्ट्रेंट था, एक और कंस्ट्रेंट था ना, रिस्क कंस्ट्रेंट। अच्छा, ये रिस्क कंस्ट्रेंट हम लोगों ने मेरे ख्याल से काफी क्वेश्चंस के ना वो किया था। तुम्हारा वेटेड एवरेज रिस्क कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए बॉस? 6, नो? ठीक है। तो वेटेड एवरेज रिस्क तुम लोग कैसे निकालते हो? अभी हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हुए हैं, एक्सपेक्ट यू ऑल टू रिप्लाई। एक मिनट, पहले यहां पे वर्ड्स के ना वो लिखो, वेटेड एवरेज रिस्क शुड बी लेसर देन इक्वल टू 6। चलो, क्वेश्चंस किया हुआ है, मेरे को अभी बराबर से बोलना, वेटेड एवरेज रिस्क कैसे मिलेगा? बोलो। इंडिविजुअल रिस्क बॉस कितना है? 4 है 9 ना? मेरे को बोलो, वेटेड एवरेज रिस्क अगर निकालने का होगा कैसे निकालेगा? 4x1, 4 इज द रिस्क ऑफ द फर्स्ट वन इंटू अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस आगे बोलते रहने का 9x2 आगे डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ द वेट्स, नो? x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 6। उसको उधर लेके जाओ, उसको फिर उधर से उधर लेके जाओ, सबको समझ में आ गया? तो माइनस 2x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 0। टू एक्स वन माइनस 3x2 greater than equal to 0. Fourth, non-negativity constraints x1, x2 greater than equal to 0. सुनो मेरी बात, अभी इस चीज को अपने को ग्राफ के ऊपर प्लॉट वो करने का है। यहां पे आप लोगों को पॉइंट्स की जरूरत यार वो पड़ेगी, तो लिखो x1 प्लस x2 is equal to 1 lakh. First point, second point, x1, x2, 1 lakh 0 0 1 lakh. आगे 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 मेरे ख्याल से वो वाले के लिए अपने को कोई जरूरत नहीं है ना, ये जो x1 और x2 है वो तो वैसे अपना काम हो ही जाएगा। नेक्स्ट वाले के लिए जरूरत है x1 माइनस 4x2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट सेकेंड x1 x2
अगर मैंने x2 को 0 लिया, अपना मैथमेटिक्स यूज करो छोटा मोटा, तो x1 भी कितना हो जाएगा 0। अभी कार्टून की तरह ये नहीं सोना सर अभी इसको 0 लेके देखूं, ओके कुछ और सोचो, अभी कुछ भी ले लो, तो मेरा क्या जाता है, तो कुछ भी ले लो, तुमको क्या लेने का है, x2 को अगर मैंने 1 लिया, x2 को लेता हूं 1, तो बस ये कितना हो जाएगा 4, ये उधर जाके 4, तो x1 विल बी इक्वल टू 4 नो। थर्ड, ये अभी यू ऑल डू इट, 2x1 माइनस 3x2 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, x1 x2। अच्छा, पहला पॉइंट तो ओरिजिन ही हो जाएगा ना। दूसरा क्या लिया बेटा, एक मिनट, x1 क्या लिया, मेरे को पॉइंट बोलो ना, पॉइंट बोला करो ना। यहां पे क्या लिखूं, ऊपर क्या लिखूं, नीचे क्या लिखूं, तो कुछ भी ले लो ना यार। अगर तुम लोगों ने ये 3 लिया तो ये कितना हो जाएगा 6, ये उधर जाके -6, माइनस माइनस कैंसिल, एंड के ना x2 कितना आ जाएगा 2, तो यहां पे लिख सकते हो 3 and 2। अच्छा सुनो मेरी बात, x1 का मैक्स वैल्यू कितना है 1 लाख, x2 का भी मैक्स वैल्यू 1 लाख ही है ना, तो 10,000 का स्केल वो ले लेते हैं, चलेगा। अभी अगर 10,000 का तुमको नहीं लेने का मन, क्योंकि तुम लोग ग्राफ पेपर नहीं यूज कर रहे हो, तो किधर ना किधर 75,000 भी आ जाएगा ना, तो 75,000, तो अगर 25,000 का लेना है तो वो भी ले लो। फिर अगर कोई पॉइंट अच्छी तरीके से नहीं दिखाई दिया, देन इन एनी केस वो साइमल्टेनियस करके विल सॉल्व इट। तो 25,000 लूं, ओके लिखो जरा प्लीज, स्केल x, y एक्सिस, वन यूनिट इज इक्वल टू 25,000। स्टार्ट कर रहा हूं, सुनो। फर्स्ट कंस्ट्रेंट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 लाख, तो एक पॉइंट ये ज्वाइन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 लाख। दूसरा तुम्हारा पॉइंट नंबर 1 या x1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 75,000, तो यहां पे x1 इज इक्वल टू 75,000, नहीं ये x2 वाला हो गया, ये x1 वाला हो गया। area is over here, area is over here, and area is below this.
सुनो अभी तुम्हारा पोपट वो होने वाला है, बराबर से वो देखना। सुनो तुम्हारा अभी तक फर्स्ट कंस्ट्रेंट इज ऑल ओवर, ठीक है, जो ओरिजिनल तुम्हारा फर्स्ट कंस्ट्रेंट था दैट्स ऑल ओवर। अभी आगे सुनो, ये हो गया, अभी ये बाकी है x1 माइनस 4x2 इज इक्वल, तो एक पॉइंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, ओरिजिन। तो चलो ठीक है, दूसरा सर 4 and 1, एक मिनट, इट इज नॉट 4 and 0 and 0 and 1, इट इज 4 and 1 इज 1 पॉइंट। नो बोलते सर 4 बहुत छोटा हो गया, किधर देखने का, तो अक्ल यूज करो बेटा। इफ 4 and 1 विल सेटिस्फाई 40,000 and 10,000 विल ऑल्सो सेटिस्फाई, नो, तो इधर वो लिख लो 40,000 10,000। आगे यहां पे भी 30,000 और 20,000 वो कर ही लेना। अच्छा तो एक मिनट, अभी मैं इस कंस्ट्रेंट पर हूं जो ये वाला कंस्ट्रेंट है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो चलो ओरिजिन, दूसरा 40 and 10। अभी 40 and 10 अपने हिसाब से वो थोड़ा सा वो अप्रोक्सीमेट वो करके वो ले लो, वैसे भी विल मेक द इक्वेशंस एंड विल डू इट यार, ओके। तो 25 वो देख लो अप्रोक्सीमेटली 40 वो कितना होएगा, 40 इधर से 10 इधर से, तो ये एक पॉइंट और ले लो। अच्छा अभी तुम्हारा इस क्वेश्चन में सेकंड टाइम वो पोपट होएगा, क्योंकि तुम लोगों ने कल कुछ सोच लिया था और अभी तक उसका लॉजिक तुम लोग अप्लाई नहीं करते। मेरे को बोलो ये एक लाइन बनाया सबने, ठीक है, मेरे को जरा बोलो इस लाइन का एरिया विल बी ऊपर वाला एरिया कि नीचे वाला एरिया। ऊपर वाला एरिया कि नीचे वाला एरिया? How do you decide which area, which is the area? How do you all decide? मुंडी इस तरफ होता है तो इस साइड। कल तुमको एक क्वेश्चन मैंने लिखवाया था, फर्स्ट क्वेश्चन देखो 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 तुम्हारे बुक्स में देखो, क्वेश्चन नंबर 23, पढ़ो 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 पढ़ो, जोर जोर से पढ़ो। टेक एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ एक्सेप्ट अ पॉइंट ऑन द लाइन इटसेल्फ एंड टेस्ट इट फॉर द ओरिजिनल कंस्ट्रेंट। नो, तो आंख बंद करके कोई भी एक पॉइंट मैंने लिया, कोई भी ये, चलो ये कुछ भी, ओके। सपोज चलो मैं इसके आई टेक दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। चलो तो ये वाला पॉइंट क्या है, 0 and 50,000, ठीक है। तो अभी एक मिनट, इस पॉइंट को ओरिजिनल इक्वेशन में डालो। एक सेकेंड, ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, x1 माइनस 4x2 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो तुम लोगों ने जो पॉइंट लिया है दैट इज 0 and 50,000, तो मैं 0 और 50,000 इधर डाल रहा हूं। अगर ये सेटिस्फाई हुआ, एरिया इज टुवर्ड्स दिस पॉइंट, एल्स इट इज टुवर्ड्स द अदर साइड। तो 0 इधर डाला, 50,000 इधर डाला, तो बोलो क्या आ जाएगा, -2 lakhs। इज -2 lakhs लेस देन इक्वल टू 0? यस नो? तो एरिया इज टुवर्ड्स दिस पॉइंट, तो यहां पे अप एरो, तो एरिया इस तरफ हो जाएगा। आगे 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 थर्ड वाला, ये जो यहां पर जो कंस्ट्रेंट है, एक पॉइंट बेटा क्या है, ओरिजिन, दूसरा 30 and 20, अभी अप्रोक्सीमेटली वो ले लो। पिछली बार 40 था ना, एक्चुअली 40 थोड़ा इस तरफ वो लेना चाहिए था, ठीक है, चलो उसमें क्या फर्क पड़ता है। अभी 30,000, नो, सो 30,000 किधर वो इधर आएगा, लेकिन एक मिनट, 30 के आगे क्या है बेटा, 20, नो, तो 30 इधर से 20 इधर से, तो अप्रोक्सीमेटली किधर वो इधर आ जाएगा, दैट्स ओके, चलेगा। नहीं कि हम लोग साइमल्टेनियस यूज करके वी आर ट्राइंग टू गेट ऑल द पॉइंट्स, सो दैट्स ऑल फाइन। अच्छा तो एक पॉइंट ओरिजिन, एक पॉइंट ये,
तो दिस विल बी एक मिनट, x1 प्लस 4x2 x1 माइनस 4x2 इज इक्वल टू 0. दिस विल बी 2x1 माइनस 3x2 इज इक्वल टू 0. चलो इस बार तो बराबर से बताना. मेरे को बोलो एरिया इज नीचे वाला के ऊपर वाला. अभी दो ही ऑप्शन है. टेस्ट करो जैसे मैं टेस्ट करते हैं. कितना टाइम लगता है वो टेस्ट करने के लिए, करो तुम लोग. आंख बंद करके कोई भी एक पॉइंट लो, उसको टेस्ट करो ना यार फॉर द ओरिजिनल इक्वेशन. ऊपर वाला के नीचे वाला? नीचे वाला. एग्जांपल आंख बंद करके मेरे को वही पॉइंट आया 0 and 50,000. ओके तो 0 50,000. एक मिनट, ये ओरिजिनली क्या था बेटा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर मैंने यहां पर 0 लिया, इधर 50,000 लिया, 0 माइनस ये कितना हो जाएगा? 1,50,000. तो आंसर कितना आ जाएगा? माइनस 1,50,000. इज माइनस 1,50,000 ग्रेटर देन इक्वल टू 0? No, no, no. So area is not towards this particular point. It is below, no मतलब तो नीचे की तरफ. एक मिनट, मेरे को बोलो तुम्हारा feasibility region क्या? अच्छा वो शेप तुम लोग वो बोल नहीं पाओगे. मेरे को बोलो कितने वर्टाइसेस हैं उसके, मेरे को समझ में आ जाएगा. हाँ 4 नो 1 2 3 and 4. तो इसको तो ओरिजिनली बोल देते हैं. इसको बोल दो A, इसको बोल दो B, इसको बोल दो C. मैं ये वाला पोर्शन रब आउट कर रहा हूं. आई विल नॉट रिक्वायर दिस पर्टिकुलर डेटा अगेन. सुनो, अभी किस किस का कोऑर्डिनेट तुमको मालूम है? मेरे ख्याल से तो किसी का भी नहीं मालूम है, क्योंकि हम लोगों ने ग्राफ ही वो ऐसा वो स्ट्रेंज बनाया. तो इन एनी केस ए का एक कोऑर्डिनेट तो मालूम है ना, 75,000. दूसरा प्लीज मटका नहीं मारने का है. ओके यू सॉल्व इट नो यार, तो वो मिल ही जाएगा. तो यहां पे लिख के रखो फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ. सबसे पहले ए. A is intersection of which two lines boss? x1 is equal to 75,000 and x1 minus 4x2 is equal to 0. तो डायरेक्टली x1 75,000 के तौर पे डाल दो ना इन द सेकेंड इक्वेशन. x1 75 था, उसको डायरेक्टली यहां पर वो डाल ही दिया. दिस वॉज फर्स्ट इक्वेशन, दिस वॉज सेकेंड इक्वेशन. तो ए का कोऑर्डिनेट बॉस 75,000 18,750. अच्छा कैसे बी का भी एक कोऑर्डिनेट तो फिक्स ही है ना, 75,000. B x1 is equal to 75,000 और दूसरा वाला ये था ना x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 लाख. चलो अभी इसके अंदर क्या मैथमेटिक्स चाहिए, तो x2 इज इक्वल टू 25,000. तो B का कोऑर्डिनेट 75 25. C is intersection of boss which two lines? I guess वो which two lines here? x1 plus x2 is equal to 1 lakh और दूसरा 2x1 minus 3x2 is equal to 0. I'm multiplying first 1 by 2. 2x1 plus 2x2 is equal to 2 lakhs
2x1 minus 3x2 is equal to 0. सब्ट्रैक्ट कर रहा है 5x2 is equal to 2 lakhs, x2 is equal to 40,000. उसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, x1 60 आ जाएगा. तो तुम्हारा C का कोऑर्डिनेट एक 60,000 हो रहा है, एक 40,000 हो रहा है. लिख के रखो ABCO is a feasibility region. ABCO is the feasibility region. नेक्स्ट लाइन पे अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाओ वापस. तो वी आर ब्रिंगिंग बैक द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 0.1x1 प्लस 0.2x2 टेस्टेड फॉर A, B, C and O. 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 into plus 0.2 into. So 75, 18, 750. Point B 75,000, 25,000. Point C 60,000, 40,000. This will be 0, 0. आंसर्स कितने आते हैं? 11,250, 12,500, 14,000. कंक्लूजन लिख के रखो सब लोग. द मैक्सिमम रिटर्न इज ₹14,000. which will happen when we invest 60,000 and 40,000 in portfolio 1 and 2 respectively. So that's it. That'll end your graphical method. So we'll be starting away with simplex.